your neighbor. चलो फिर एक बार आपके बाजू वाले के पास मुड़ो Shout to your neighbor. और आपके बाजू वाले के पास देखकर चिल्लाओ, Get excited. उत्तेजित हो जाओ, Get excited. उत्तेजित हो जाओ, Because your heavenly Father is going to touch you. Come on. क्योंकि आपका स्वर्ग के पिता आपको छूने वाला है। चलो Turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और उससे ये कहे, stay in touch. संपर्क में रहो, Come on, stay in touch. संपर्क में रहो, Once again, stay in touch. संपर्क में रहो। Give it up for the Lord, everybody. Come on, everybody. Come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 16 and verse 11, everybody. भजन संहिता 16 और 11 सभी जन। Psalm 16 and verse 11. भजन संहिता 16 और इसका 11 वचन। Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is the fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Amen, amen, amen. John 20 and verse 22, everybody. और यूहन्ना इसका 20वां अध्याय वचन 22। And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा पाओ। Amen. Everybody just eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए सभी जन इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord, my God, for your presence that's in this place. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति जो इस जगह में है। Thank you, Lord, my God, they're going to walk amongst us all today. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आज आप हमारे सभी के बीच में आप चलने वाले हैं। Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, I pray today, Lord, मैं आज दुआ करता हूँ प्रभु, enable your people, Lord, to touch the hem of your garment. आपके लोगों को मदद करो परमेश्वर कि आपके वस्त्र के छोर को आज वो छू ले। Even as you pass by, जैसे आप बाजू से गुजरोगे, give your people the grace to touch. आपके लोगों को वो अनुग्रह दो ताकि वो छुए। Change these lives, Lord. इन जिंदगियों को बदल दो Let your प्रभु। word empower your people आपके वचन से द्वारा आपके लोग सामर्थ्य बने and let lives be changed. और इन जिंदगियों को बदलने दो। Thank you for your rhema, Lord. धन्यवाद प्रभु आपके रेमा के लिए। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते And हो। as you sit down, turn to your neighbor and tell your neighbor, और- stay in touch. और जैसे आप बैठ रहे हो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो, संपर्क में रहो, Once again, stay in touch. संपर्क में रहो, Stay in touch. संपर्क में रहो। Amen. आमेन। There's a lot of anointing in this place. Like, how many can sense the presence of the Lord in this place? और इस जगह में बहुत अभिषेक है और कितने लोगों को इस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस आपको हो रहा है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. You know something? आपको कुछ पता है? Right now, I can go into the anointing session. और इसी वक्त मैं अभिषेक के सत्र में जा सकता हूँ। But I want to first, fill up this place with power. लेकिन पहले मैं इस जगह को सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हो? Amen. Amen. Let's open our Bibles to the book of Genesis. आइए हम अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति के किताब की। Amen. Genesis chapter 2, everybody. उत्पत्ति की किताब इसके दूसरा अध्याय। We see in chapter 1 हम एक पहले अध्याय में देखते हैं that how God made everything that is pertaining to earth. कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ जो इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, कैसे उसने सब कुछ बनाया। The Bible says बाइबल कहता है in verse 1 onwards, वचन 1 से आगे the earth was without form and void, कि ये पृथ्वी जो थी वो बेडोल और सुनसान पड़ी थी and there was darkness upon the face of this planet, और इस ग्रह के ऊपर जलशाय पर वहां पर अंधकार छाया हुआ था and there was no light. और यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं था। And the Bible states, और बाइबल कहता है God spoke, कि परमेश्वर ने बोला let there be light, कि प्रकाश हो and there was light. और वहां पे प्रकाश हो गया। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, then we see how
God makes the oceans, the trees, the rivers, the mountains, the valleys, and the birds and the fowls of the air, and the cattle and everything, how God creates everything we read in Genesis chapter 1. और फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पेड़ पौधे, समुंदर, नदी और पर्वत और तराई और पंछी और जानवर और सब कुछ कैसे परमेश्वर ने बनाया, यह सब कुछ पहले अध्याय में हम देखते हैं. But there was nobody to take care of this planet. लेकिन इस ग्रह को संभालने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था. So God, knew it long ago, even before time was created. और परमेश्वर को ये पहले से ही पता था, समय के निर्माण से पहले ही. Even before, there could be an angel ever created. और कोई स्वर्गदूत तैयार होए उसके पहले ही परमेश्वर को Even पता before था. the heavens were made, और ये स्वर्ग बनाने से पहले ही God had a plan. परमेश्वर के पास एक योजना थी. And the plan was, और योजना ये थी, let us make man in our image, after our likeness. आइए हम मनुष्य को बनाएंगे हमारे ही प्रतिरूप में, हमारे ही प्रतिछाया में. Why? क्यों? Because the one to control this planet Earth, which is made by us, क्योंकि वो जो इस ग्रह को नियंत्रित करेगा, जो हमने बनाया है. I repeat once again, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. why? क्यों? Because the one to control this earth, which is made by us, क्योंकि ये ग्रह जो हमने बनाया है, उसे जो नियंत्रित करेगा, has to be just like us. उसे हमारी तरह ही रहना है. आमीन, आमीन, Amen. आमीन. Otherwise, he will spoil it. नहीं तो वो उसको बिगाड़ के रख देगा. Turn to somebody and say, otherwise, he will spoil it. Come on. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, नहीं तो वो उसे बिगाड़ के रख देगा. Amen. 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 I've given you the whole message right away. It's done. I can pack it off. देखो मैंने पूरा संदेश अभी आपको दे दिया है और मैं अभी से बंद कर सकता हूँ. चला कान है तनी आइको. जिसके कान है वो सुने. Amen. Amen. So listen, everybody. तो सभी जन सुनो. So God makes man in his image. तो परमेश्वर आदमी को, उसके इंसान को उसके प्रतिरूप में बनाता है. Now I take you to Genesis chapter 2, everybody. अब मैं आपको उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ले चलता And हूँ. now when I come over there, और अब मैं जब वहां पर आता हूँ, we read how God made this man. कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस इंसान को बनाया. This word, the word Adam is used. I told you sometime back. I repeat once again. और ये जो शब्द आदम, इसका इस्तेमाल हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. Adam, the word actually means mankind. और आदम ये शब्द का अर्थ है इंसानियत. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. So when God made Adam, तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, the Bible states in Genesis chapter 2, everybody, बाइबल कहता है उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में and verses 7 onwards. और वचन 7 से आगे, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया. Amen. आमीन. The moment God breathed into the nostrils of Adam or mankind, और जैसे ही परमेश्वर ने आदम के नथनी में फूका या फिर इंसानों के नथनी में फूका, उसी वक्त वो जीवित प्राणी हो गया. I didn't say that. Immediately, तुरंत ही mud became active. मिट्टी जो है वो कार्यशील बन गई. Amen. आमीन. Mud began to move. मिट्टी जो है हिलने लगी. Mud began to understand life. मिट्टी जिंदगी को समझने लगी. Can you hear a loud amen? Come on, क्या मैं come जोरों on, से आमीन come सुन on, सकता come हूँ? on. Mud began to connect to earth. और मिट्टी जो है इस धरती से जुड़ने लगा. Mud began to feel and move around this globe called earth. मिट्टी जो है इस धरती को महसूस करने लगा और इस धरती पर घूमने फिरने लगा. Oh, understanding that what is this thing? ओ, ये समझते हुए कि ये क्या चीज है. Oh, what is happening? ओ, क्या हो रहा है. And the first breath from his nostrils, और पहले श्वास उसके नथनी से, पहले सांस उसके नथनी से, the breath of life. और जीवन का श्वास. Mud became into one body. The molecules got together, changed its structure, and became flesh. और मिट्टी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और उनका आकार जो है वो बदलने लगे और वो देह बन गए.
मिट्टी का स्वरूप बदल गया, अब वो मांसाहारी बन गया। आमेन, कोई जोर से आमेन बोलो यार। आमेन। अगर जबान मुंह में नहीं है तो भाड़े पे नीचे दिए रखा है भेड़िया भाड़े पे, आधा घंटा 2 रुपया लेके आ जाओ और इस्तेमाल करो। कमान, चलो, कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। कितने बार ये वचन को सुना है? अंदर कुछ हो रहा है क्या? पहली बार ये अलग आ रहा है। आमेन, आमेन। आमेन। Come on, I'm changing levels. ओ चलो, मैं स्तर बदल रहा हूँ। You want to be there, I'm going to go ahead. आपको वही रहना, आप वही रहो, मैं तो आगे जा रहा हूँ। I don't know who I'm giving this word to, देखो, मैं ये नहीं जानता ये शब्द मैं किसको दे रहा हूँ, but I believe there is somebody listening, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई तो सुन रहा the है, right people. सही लोग। I'm preaching for them. मैं उनके लिए ये संदेश दे रहा People हूँ। of God, परमेश्वर के लोगों, this mud changed the structure ये मिट्टी जो है उसका स्वरूप ही पूरा बदल गया and it became into flesh. और मांसाहारी बन गया, और मांस बन गया। बन गया। The moment breath of God came in that nostrils. जैसे ही परमेश्वर का जो सांस है उसमें आ गया, वो मांस बन गया। The muddy eyeballs turned into cornea, into the flesh that we have in us. जो मिट्टी के आंख थे वो आज जो हम में आंख है, जो मांस के है, वैसे वो बन गए। The eyelids that were of mud, जो आंख के ऊपर की पुतली है जो मिट्टी के थे, suddenly अचानक से the molecules changed their structure. उनके अणु जो है वो उनके रूप को उन्होंने बदल दिया And it began to blink. और वो खुलने और बंद होने और लगे। वो हिलने लगी, वो झपटने लगी, वो झपकने लगी। Yeah, it began to move. वो झपकने लगी। Suddenly everything changed in the structure of something called as man. और अचानक से ये जो ढांचा है जिसे इंसान कहते हैं उसमें सब कुछ बदलने लगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, that the Bible states, और बाइबल कहता है, you know, something is very important over here. देखो यहां पर कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Always understand this. हमेशा ये समझ लो, God never changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? Maybe your neighbor doesn't know that. You need to tell your neighbor, Sh- God never changes. शायद आपका बाजू वाला जो है उसे ये पता नहीं, उसे बताओ परमेश्वर कभी नहीं बदलता। बोलो, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। बोलो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। So as we are picked up from the plethora of humans on this planet to be in the Lord, और जैसे हमें इस धरती के भीड़ में से चुना गया है कि हम प्रभु में रहे, all are called, सभी बुलाए गए हैं, but few are chosen. लेकिन कुछ ही चुने गए हैं। Amen. आमेन। Likewise, वैसे ही this mankind, from this mankind, Adam, इस इंसान से या फिर इस इंसानियत से, आदम से, one Adam एक आदम was chosen, separated by God. परमेश्वर ने चुना और उसे अलग किया था। He was not given a woman. उसे स्त्री अब तक नहीं दी गई थी। उसको स्त्री नहीं दी गई, because he had a purpose. क्योंकि उसके पास एक मकसद था। Anybody who is chosen of God, और जो कोई भी परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, the very first purpose in your life, जो सबसे पहला मकसद आपकी जिंदगी में है वो ये है, and that is और वो है the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। आमेन। I don't know if your neighbor has heard it. Tell your neighbor, the kingdom of God. मुझे पता नहीं कि आपके बाजू वाले ने ये सुना या नहीं, लेकिन उन्हें कहो परमेश्वर का राज्य। Bolo, come on. परमेश्वर का राज्य, The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। So he was set aside by God. तो परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया था। For every other mankind that God made, every other Adam that God made on the planet on that day, और उस दिन पर हर एक इंसान जो परमेश्वर ने बनाया था, हर एक आदम जो परमेश्वर ने बनाया था उस दिन पे, all of them was given, each of them, a man and a woman. और हर एक को
हर एक इंसान को, हर एक पुरुष को एक स्त्री दी गई थी, हर एक को। लेकिन जिसको बनाया था उसके मकसद के लिए उसको अकेला ही रखा। Never compare your life with the people of this planet. इस ग्रह के लोगों के साथ आपके जिंदगी की तुलना कभी नहीं करना। It's my marriageable age. Why I'm not getting my partner? मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरा जोड़ीदार अब तक मुझे क्यों नहीं मिलता? Turn to your neighbor and tell your neighbor you are different. आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और आपके बाजू वाले से कहो आप अलग हो, बोलो, आप अलग हो। always remember this, everybody. हमेशा आप सभी जन ये याद रखो, If there is a plan of God working over your life, अगर परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी पर कार्यरत है, you cannot do the stupid mistake of comparing yourself with the world. आप ये बेवकूफी नहीं कर सकते, ये गलती नहीं कर सकते कि खुद की तुलना इस दुनिया से करें। No, she does it, he does it, why not me? नहीं, वो करती है, ये करता है, तो मैं क्यों नहीं? You cannot compare your life with them. आपकी तुलना, आपकी जिंदगी की तुलना उनके साथ नहीं कर सकते। Can I hear an amen? Come on. क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? Now, next point. अब अगला मुद्दा, Let's see what the Lord does now. आइए देखेंगे हम परमेश्वर क्या And he करता है। became a living soul. और वो जीवित प्राणी बन गया। Amen. Now, verse 8 declares, और वचन 8 घोषित करता है, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसने रचा था रख दिया। Now listen, everybody, this is important over here. अब सभी जन सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। At that time, उस क्षण को, उस वक्त, it was the 6th day when God made man. वो छठवां दिन था जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया। But I've got a news for you. लेकिन आपके लिए मेरे पास एक समाचार है। The day at that time was not 24 hours. और उस वक्त दिन जो था वो 24 घंटे का नहीं था, It was more than 24 hours. वो 24 घंटे से कई ज्यादा था। We make a mistake of understanding this, हम आज ये गलती करते हैं ये समझने के लिए that God made the whole everything on the planet Earth in 7 days. कि परमेश्वर जो है, 6 days. परमेश्वर जो है इस धरती को हर एक सब कुछ 6 दिन में उसने बना दिया। That's what we feel. ऐसा हमें लगता है। Yes, it is 6 days. हाँ, वो 6 दिन है, But that one day is not of 24 hours. लेकिन वो एक दिन 24 घंटे का नहीं। It is a many, I don't know how many hours, I have no idea, I was not there that time. I really pray that God will show me one day. और वो बहुत घंटों का है, और उस वक्त मैं था नहीं तो मुझे नहीं पता कितने घंटे लगे थे एक दिन खत्म होने में। मैं सच में परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि एक दिन वो मुझे वो दिखाए। The Bible states that one day is like 1,000 years for God. और वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए एक दिन जो है वो 1000 सालों के बराबर है। So people of God, और परमेश्वर के लोगों, God took this one man परमेश्वर ने इस एक आदमी को लिया and put him in the garden which he had planted. और उसे उस वाटिका में रख दिया जो उसने खुद ने लगाया Now था। listen, everybody. अब सभी जन सुनो, Before I go into that, और उसमें जाने से पहले listen. सभी जन सुनो, You should not forget one point. आपको एक मुद्दा नहीं भूलना चाहिए That when God made this Adam, कि जब परमेश्वर ने इस आदम को बनाया, इस आदम को बनाया and was planting a garden for him, और उसके लिए एक वाटिका लगा रहा था, what was Adam doing? आदम क्या कर रहा था? Watch me, don't miss this, everybody. सभी जन मुझे ध्यान से देखो, इसे मत गवाओ। This is the answer. ये जवाब है। What was Adam doing? आदम क्या कर रहा था? Read verse 8. वचन 8 को मैं पढ़ता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई। जब परमेश्वर वाटिका लगा रहा था तब आदम क्या कर रहा था?
जब परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है आपको चुपचाप रहना है. कोई आमेन बोलेगा क्या? गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज. When God is working for you, जब परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, turn to your neighbor and tell your neighbor, be still. आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उनसे कहो शांत रहो. Once again, शांत रहो. शांत रहो. शांत रहो. शांत रहो. Soon we're smiling at me. Give the Lord a mighty hand of praise. Everybody सभी come लोगों on. को कमान से दिखाओ. चलो. People of God, परमेश्वर के लोगों, we are not like that. Tell your neighbor, we are not like that. हम वैसे नहीं हैं. आपके बाजू वाले से कहो हम वैसे नहीं हैं. Come on, tell your neighbor. चलो आपके बाजू वाले से कहो हम वैसे नहीं हैं. Yeah, when we listen. This is important. This is important. सुनो 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 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. When God made this Adam, जब परमेश्वर ने इस आदम को बनाया, इस आदम को बनाया. Say that. इस आदम को बनाया, He, after making this Adam, परमेश्वर इस आदम को बनाने के बाद He breathed into his nostrils the breath of life. उसने उसके नथनी में जीवन का सांस फूका. Done. हो गया. Adam became a living soul, the Bible states. और बाइबल कहता है कि आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया. Now, अब what does God do? परमेश्वर क्या करता है? God goes eastward, परमेश्वर पूर्व की ओर जाता है, leaving Adam all alone. आदम को वहीं पर अकेले छोड़कर. Oh, that is the problem with us. ओह, यही तो समस्या है हमारे साथ. Whenever we ask God, जब कभी भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, Lord, do this for me. हे परमेश्वर ये मेरे लिए कर. Lord, get a husband for me. हे परमेश्वर मेरे लिए एक पति ले आ. Lord, get a wife for me. हे परमेश्वर मेरे लिए एक पत्नी ले आ. Lord, I want to buy this house. Lord, परमेश्वर मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ. I want to build this bungalow. परमेश्वर ये बंगलों में बांधना चाहता हूँ. Lord, I want to have this company. परमेश्वर ये कंपनी में चाहता हूँ. Lord, I want to do this in my हे life. परमेश्वर मेरे जिंदगी में मुझे ये करना चाहता हूँ. I want this job. मुझे ये नौकरी चाहिए. When you say this, जब आप ये कहते हो, God sets apart from you, goes away from you to get the work done. परमेश्वर आपसे अलग होता है. परमेश्वर आपसे दूर चला जाता है वो काम करने के लिए. And you feel, और आपको लगता है God is not showing me anything. है, परमेश्वर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा. God is not answering me anything. परमेश्वर तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा I है. can't see any of God's answer. और मैं परमेश्वर के किसी भी जवाब को नहीं देख पा रहा हूँ. Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Where is the answer? जवाब कहाँ पर Why है? is not showing me anything? वो मुझे क्यों कुछ भी नहीं दिखा रहा है? Turn to neighbor and tell your neighbor. आपके बाजू वाले का सुना उससे कहो, अरे तेरे लिए तो काम चालू है ना, come on. अरे तेरे लिए तो काम चालू है ना. आमीन. कोई जोर से आमीन बोलेगा क्या? Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, Listen everybody. सब ये सुनो. It would have been easy for God to keep Adam in the muddy state and go and plant the garden. Come on, am I talking to somebody here? चलो ये परमेश्वर के लिए बहुत आसान होता कि आदम को वो मिट्टी जैसा ही रखे और उसके लिए जाकर एक वाटिका लगाए. चलो कोई तो मुझसे बात करो. और मैं यहाँ पर किससे बात कर रहा हूँ क्या? आमीन. Ah! आमीन. Ah! आमीन. Ah! आमीन. And then come back and. और फिर वापस आकर, But no. लेकिन नहीं. Adam's faith has to be tested. और आदम में जो विश्वास है उसकी परीक्षा होनी ही चाहिए. Yeah, come on, जोर से आमीन बोला, come on. आमीन. चलो People of God, परमेश्वर के लोगों, the righteous shall live by faith. जो धर्मी है वो विश्वास से जिएंगे. कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन. परमेश्वर भी देखता है, देखो कि ये एदेन के काबिल है क्या, जवाब के काबिल है क्या, आमीन, देखते आमीन. हैं. Come on, come आमीन. on, come on. परमेश्वर के लोगों, Oh, I'm excited. I'm excited. ओ मैं उत्तेजित हूँ, मैं उत्तेजित हूँ. Amen. Are you Amen. translating or are you saying it?
People of God, listen everybody. और परमेश्वर के लोगों समझने सुनो, It is imperative that you and I understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं ये समझ ले, The absence of God, that doesn't mean God has not heard your prayer. परमेश्वर का नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपकी दुआ को नहीं सुनी है। The absence of God doesn't mean परमेश्वर की नहीं होना का अर्थ ये नहीं है that God has not heard your prayer. कि परमेश्वर ने आपकी दुआ को नहीं सुनी है। The absence of God doesn't mean और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होना इसका अर्थ ये नहीं है that God has forgotten your request. कि परमेश्वर जो आपने विनती की वही भूल गया है। Oh, the absence of God doesn't mean और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होना इसका अर्थ ये नहीं है that God has rejected your prayer. कि परमेश्वर ने आपके दुआ को नकारा है। Turn to your neighbor and tell your neighbor, आपके बाजू वाले का पास मुड़ो और उनसे कहो, नकारा फकारा नहीं है, काम चालू है. Come on, come on, come नकारा on, come बकारा on. नहीं है, काम चालू है। God, परमेश्वर के लोगों, God has not rejected your prayer. The work is going on. परमेश्वर ने आपकी दुआ को नकारा नहीं है, लेकिन काम जारी है। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? Come आमेन, on. आमेन। जोर से, come on, जोर से, come on. आमेन, आमेन। Come on, come on, आमेन, come on, आमेन, come on. आमेन, But आमेन। it is imperative. लेकिन ये महत्वपूर्ण है You stand कि आप खड़े रहो, absolutely still. चुप, बिल्कुल चुपचाप। सगळ्या देहिक वळवळी बंद. बोलो बाजू वाले को. सगळ्या देख वळवळी बंद, All your fleshly activities सारे closed. सारे देख वळवळ जो है वो बंद। What we do is और हम क्या करते हैं वो ये है, Lord, give me a nice husband. हम कहते हैं हे प्रभु मुझे एक अच्छा पति दे, And then we go outside. और फिर हम बाहर जाते हैं। है हा का? हे, हाँ ये का? क्या है, वो क्या हे तो का? ए वो क्या हे ती का? ए वो है हे क्या? ही ये वो देव वाटिका लावतच नाही. देव बघत बसतो. हा बघून घे. हा बघून घे. बचकाळ्या आल्या का आता बाहेर? बचकाळ्या आल्या? हा पाठ दुखायला लागली, म्हातारी झाली, म्हातारा झाला. हा झालं, संपलं तुझं, झालं, गळून पडलं सगळं काय. हा जा घरी, जा, ये घरी ये, चल. Turn to neighbor and tell your neighbor, let God work, man. Let God work. आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और आपके बाजू वाले से कहो, अरे परमेश्वर को काम करने दे यार, परमेश्वर को काम करने दे, बोला यार, come on. परमेश्वर को काम करने दे यार, परमेश्वर को काम करने दे। उगाच आपल्या वळवळी करायच्या. Unnecessary keep fidgeting around everywhere. फालतू में या वहाँ कुछ ना कुछ करते रहना है। What was Adam doing when God was planting the garden? जब परमेश्वर वाटिका लगा रहा था उस वक्त आदम क्या कर रहा था? What was Adam doing? आदम क्या कर रहा था? He was still. वो चुपचाप खड़ा था। We don't get a baby. हमें बच्चा नहीं मिलता, We go everywhere. हम सभी जगह पर जाते हैं। उधर इधर उधर इधर, जैसे कि हॉस्पिटल में बच्चा ऐसा इंजेक्शन से डालेंगे अंदर सट करके. ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा इंजेक्शन है, मेरे को बताओ जो लगाने से बच्चा होता है? इस भाई साहब को पूछो, इसको तो ट्विंस निकालने को भी आता है, एक्सपीरियंस है. कम ऑन, चलो, how you do that? People of God, listen. परमेश्वर के लोगों सुनो, Where can you go to get babies? बच्चे पाने के लिए आप कहां जा सकते हो? Apart from God, परमेश्वर को छोड़ who can give you a baby in your womb? आपके घर में कौन आपको बच्चा दे सकता है? Tell me a doctor's name. मुझे एक डॉक्टर का नाम बताओ, I will cut his head and ask him to join it back. मैं उसके सिर को काटूंगा और उसे कहूंगा फिर उसे जोड़ के दिखा। If you think till God doesn't send a soul, some man can send another soul in your womb, then you are crazy. अगर आप ऐसे सोच रहे हो जब तक परमेश्वर एक जी आपके घर में नहीं भेज सकता तब तक एक इंसान आपके घर में एक जी भेजेगा। नहीं, परमेश्वर एक जान को, एक जी को भेजे ना भेजे, इंसान मुझे एक जी इंजेक्शन से देगा अंदर. अहो तुम्हाला बाळ होईल पण अंगात काय राहणार नाही त्याच्या. किती लोकांना मेलेलं बाळ हवंय का इथं? मेलेलं सगळे हातपाय सगळे असे राहतील. चालेल का? जर का तुम्हाला जिवंत बाळ हवंय तर जो जीव बनवतो आमेन,
तोच टाकू शकतो ना ते बा Amen. की लॉर्ड काम कर रहा है और उसको करने देना यार. आमेन. तुझ्या विश्वासाची चाचणी होते ना बाबा. जरा धीर धर ना बाबा. लगेच फेसबुकवर व्हॉट्सअपवर चिरकुटवर फुरकुटवर इथं फ्रेंडशिप तिथं फ्रेंडशिप. अरे थांब. भंगारवाला हवाय का पोत्रच हवाय काय हवाय. मनाचं राजकुमार पाहिलं आणि पोत्राशी लग्न करायचं आणि सकाळी उठून बुंग 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 फटाक. हाऊ इज इट गोइंग टू वर्क. ये कैसे काम करेगा. तू पण ढोल घेऊन जोंग डोंग 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 फटाक डोंग डोंग डोंग. People of God, परमेश्वर के लोगों, let God work. Tell your neighbor, come on. परमेश्वर को काम करने दो. आपके बाजू वाले से कहो चलो बोलो. परमेश्वर को काम करने दो. आमेन. तुम्हारी वळवळ शांत बैठो ना यार. बोलो बाजू वाले, शांत बैठो ना यार. Come on. शांत बैठो ना यार. Relax. आराम करो. कोई आमेन जोर से बोलेगा क्या. Come on. आमेन. हाँ आमेन. हाँ. आमेन. Yeah. हाँ. Now, अब further the Bible states, आगे बाइबल कहता है, and there and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, and the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में सब भांति के वृक्ष को जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया. People of God, परमेश्वर के लोगों, why did God do this for Adam? That's my point today. मेरा आज का मुद्दा यह है कि परमेश्वर ने आदम के लिए ये क्यों किया. Now, listen everybody. आप सभी जन सुनो. If you want God to bless you अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीषित करे with your Eden, आपके एदेन के साथ, how many want God to bless you with your Eden? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपके एदेन से आशीषित करे. Amen. आमेन. Then for that, तो फिर उसके लिए you need to understand one thing. आपको एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है. Are you ready? क्या आप तैयार हो. I'm going to close in a few minutes now. और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मैं बंद करने वाला Are हूँ. you ready? क्या आप तैयार हो. Listen everybody. सभी जन सुनो. Two important points. दो महत्वपूर्ण मुद्दे Listen. सुनो. You need to understand आपको ये समझना है that to get things from God, कि परमेश्वर से चीजें पाने के लिए you need to know how this Adam got it in the first place. आपको ये समझना जरूरी है कि इस आदम को पहली दफा वो कैसे मिली. Yeah. हाँ. How did God give this Adam that Eden? कि परमेश्वर ने इस आदम को वो एदेन कैसे दिया. See, every other Adam that was made, देखो हर एक दूसरा आदम जो बनाया गया था, they all got the whole planet. उन्हें ये पूरा ग्रह मिल गया. But this man who was special, लेकिन ये व्यक्ति जो बहुत ही विशेष था, he not just got the planet, उसे बस ये ग्रह मिला इतना ही नहीं, he got the glory, उसे महिमा भी मिली, he got the power, उसे सामर्थ भी मिला, he got the authority, उसे अधिकार भी मिला. physical and above all spiritual. शारीरिक और सबसे ऊंचा आत्मिक भी. Amen. आमेन. But लेकिन my point is, मेरा मुद्दा यह है, how did he get it? उसे ये कैसे मिला. Are you ready for the revelation, everybody? क्या प्रकाशन के लिए आप सभी जन तैयार हो. I know you've heard it many times. I'm just going to refresh it. मुझे पता है कि आपने बहुत बार ये सुना है, लेकिन बस आज मैं उसे फिर से ताज़ा करने वाला हूँ. Listen, everybody. Let's read verse 8. आइए हम सभी जन मिलकर पढ़ेंगे वचन 8 को. Read. सुनो. और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदेन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया. वहां पर बोलो जोर से, एक दूसरे को जोर से बोलो, रख दिया. बोलो रख दिया. रख दिया. रख दिया. रख दिया. रख दिया. त्याने तिथे आदामाला ठेविले. बोला ठेवले. बोला ठेवले. 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 That means he picked
picked up Adam and carried him into Eden. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आदम को उठाया और उसे एदेन तक उठाकर ले आया. Amen. Amen. And placed him there. और फिर उसे वहां रखा. I repeat once again, you are not seeing my action. Watch carefully. Here's the revelation coming to you. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, आपने शायद मेरे कृति को नहीं दिखा. यहां पर आता है प्रकाशन आपके लिए. He picks up Adam, वो आदम को उठाता है, carries him into Eden, उसे एदेन तक उठाकर ले चलता है and places him there. और उसे वहां रख देता है. I repeat once मैं again. फिर एक बार दोहराता He हूं, picks up Adam वो आदम को उठाता है and takes him till Eden, carries him till Eden, और उसे एदेन तक उठाकर ले चलता है and places him there. और वहां पर उसे रखता है. People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever God has to give you anything, जब कभी भी परमेश्वर को आपको कुछ देना होता है, you don't have to work for it. आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है. God gives it to you. परमेश्वर वो आपको देता है. But listen, लेकिन सुनो, how? कैसे How? कैसे. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, He picked up Adam. उसने आदम को उठाया, He picked up. उठाया. That means इसका अर्थ यह है Adam was in his arms. कि आदम उसके बाहों में था. आमेन. That means इसका अर्थ यह है Adam was in touch आदम संपर्क में था with God. परमेश्वर के साथ. Touch, संपर्क में, 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 touch. संपर्क में. And then he placed him there. और फिर परमेश्वर ने उसे वहां पर रख दिया. You want anything from God? आपको परमेश्वर से कुछ भी चाहिए? Say it loudly, everybody, to one to your neighbor. Come on. चलो एक दूसरे को जोरों से चिल्ला कर कहो, Stay in touch. संपर्क में रहो. You need to be under the anointing. आपको अभिषेक के अंदर रहना जरूरी है. तो फिर आपको सारी चीजें आसानी से दी जाएगी. कोई चलो समझिए, people of God, परमेश्वर के लोगों, you and I need to understand. आपको और मुझे यह समझना जरूरी है In the presence of God there is fullness of joy. कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Hallelujah. Hallelujah. Saints of God, सब परमेश्वर के संत करो, understand this. ये समझ लो, The anointing will complete the joy in your life. जो अभिषेक है वही आपके जिंदगी में आनंद को पूरा करेगा. आमेन. जोर से आमेन बोलेगा क्या? Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you don't have the anointing, अगर आपके पास अभिषेक ही नहीं, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you'll be removed from your Eden and sent back to the same place where you were made. आपको एदेन से निकाला जाएगा और आपको उसी जगह पर भेजा जाएगा जहां पर आपको बनाया गया था, Where God had found you. जहां पर परमेश्वर आपको मिला था. नहीं, जहां पर आप परमेश्वर को मिले थे, उसी गटर में, उसी कचरे में, उसी वाटों के जगह में, वहां पर आपको हकाल दिया जाएगा अगर आपने अभिषेक के साथ जुड़े नहीं रहे तो. Tell your neighbor, anointing is important, boy. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और आपके बाजू वाले से कहो, अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण है यार. बोलो. अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण है यार. या हाँ. अभिषेक नहीं, कुछ नहीं दुनिया में. आमेन. कोई भी दुआ ऐसे खाली मत जाने दो जिस दिन परमेश्वर आपको छुएगा नहीं. तब तक आमेन मत बोलो जब तक पवित्र आत्मा कहता है नहीं हो गया. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? Come on, Amen. come on. Let the breath of God breathing always in you. और परमेश्वर का जो सांस है हमेशा आप में फूंकता रहे, ताकि जो भी यहाँ वहां आपके जिंदगी से बिखरने की कोशिश कर रहा है वो जुड़ जाएगा और आपके लिए काम करेगा. Come on! Saints of God,
परमेश्वर के संतगणों, Do you feel you are losing control? क्या आपको लगता है कि आप नियंत्रण खो रहे हो? Do you feel you are losing things in your life? क्या आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके जिंदगी से आप खो रहे हो? Do you feel the good things that God has given you are going away from your life? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो अच्छी चीज आपको दी रखे वो आपके जिंदगी से दूर हो रहे हैं? Do you feel that God's blessings are going away from your life? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के आशीष आपके जिंदगी से दूर हो रहे हैं? Do you feel that the good health of God is going out of your life? और क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अच्छा है जो परमेश्वर ने आपको दिया वो आपके जिंदगी से दूर हो रहे हैं? Do you think the prosperity that God has given you is going out of your life? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बरकत जो परमेश्वर ने आपको दिया वो आपसे दूर हो रहा है? People of God, परमेश्वर के लोगों, you know what you are lacking? आपको पता है कि आपको किस चीज की कमी है? You know what you are lacking? आपको पता है आपको किस चीज की कमी है? तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला कसल्या कोणत्या गोष्टीची कमी आहे आणि ते म्हणजे और वो है the breath of God is not there in your prayers. परमेश्वर का जो सांस है आपके दुआओं में नहीं है. देव तुमच्या प्रार्थनेमध्ये उतरून येत नाही, म्हणून तुमच्या जीवनातून सगळ्या गोष्टी निष्ठत चाललेल्या आहे. कोणी मोठ्याने आमेन. पण जर का आपल्याला सगळ्या गोष्टी परत हव्या आहेत, जे काय देवाने माझ्यासाठी राखून ठेवलेले परत हवंय, जे काय माझ्यासाठी आहे परत हवंय, तर पुन्हा एकदा येशू वधस्तंभावर जाण्याआधी त्यांनी शिष्यांवरती आमेन. give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए सभी में People of God, परमेश्वर के लोगों, if you want to be a living soul, अगर आप जीवित प्राणी बनना चाहते हो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं आमेन, लेकिन परमेश्वर से मुख के द्वारा निकलने वाले हर शब्द से जिएगा. अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, ऐसे आलतू फालतू भाजी पाले की तरह नहीं, लेकिन जिंदा, वो भी बहुतायत की जिंदगी, तो फिर से एक बार हमें आमेन. once again our dissipating mud gathers again. और फिर एक बार ये जो मिट्टी यहाँ वहाँ फैली हुई है, हमारी जो बिखरने वाली मिट्टी है फिर से एक बार एकजुट होने लगती है, फिर से एक बार उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलकर देह में हो जाता है, शरीर में रूपांतर होता है. और जो भी मेरे जिंदगी से निकल रहा था, जो भी मेरा था, मेरे लिए था, मेरे लिए बनाया गया था, जो भी जरूरी था, जो भी निकल रहा था, फिर से एक बार उनको आदेश आता है. जैसे ही परमेश्वर का सांस मेरे नथनों में, मेरे हर एक अवयव में जब आता है, घुसने लगता है, हर शरीर के उस कण कण में वो सांस फिर से आने लगती है, पवित्र आत्मा की सांस आने लगती है. तब हर एक चीज जो मेरे लिए जरूरी है, जो निकल रही थी, कुछ भी होने दो, मेरी अच्छी नौकरी होने दो, मेरी बरकत होने दो, मेरे आशीष होने दो, कुछ भी होने दो, वो फिर से एक बार वो आपस में बात करते और कहते हैं, लगता है फिर से एक बार इसके पास जाने का समय आया है, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है. People of God, तो परमेश्वर के लोगों, today आज the Holy Ghost is over here. पवित्र आत्मा यहाँ पर है. And do you feel और क्या आपको लगता है it's all over? कि सब कुछ खत्म हो गया है? Hold on. Turn to your neighbor and tell, hold on. रुक जाओ. आपके बाजू वाले से मुड़कर उनसे कहो, रुक जाओ. Hold on. रुक जाओ. The Holy Ghost is going to do to you. पवित्र आत्मा अभी आपके ऊपर करने ही वाला है. आमेन. Is everybody eyes closed and hands uplifted? Everybody.